Hello students, today we are learning about algebraic expressions and want to reach on the topic polynomial. When we talk about algebraic expressions are made up with the combination of variable and constants. For this we use four operations: plus, minus, into, and division. When we talk about variable, x, y, z, t, etc. can be taken as the symbols of variables. Variables are the quantities which can change their value. When we talk about constants, all the digits and symbols a, b, c can be taken as constants. Constants have fixed values. Example of algebraic expressions: x square equals to x into x, x cube x into x into x. x को algebraic expression कह सकते हैं, x स्क्वायर जिसका स्ट्रक्चर x इंटू एक्स है, ये भी algebraic expression है. x क्यूब x इंटू एक्स के रूप में लिख सकते हैं इसका विस्तारित फॉर्म, ये भी algebraic expression है. Now come a little further. If we multiply x to some digit, means constant, 4, we get 4 into x equals to 4x. Then 4 is called coefficient of x. मतलब हमने वेरिएबल x के साथ में 4 को इंटू किया है तो ये कोफिशिएंट कहलाएगा. इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल, -7 इंटू वाई equals to -7y. Then -7 is called coefficient of y. Now come to the definition. Coefficient is the multiplying number with the variable that can be positive, negative, rational और irrational. जो मल्टीप्लाइंग नंबर्स होते हैं वेरिएबल्स के साथ वो सारे कोफिशिएंट कहलाते हैं. और कोफिशिएंट में नेगेटिव नंबर लिया जा सकता है, रेशनल नंबर लिया जा सकता है, इरेशनल नंबर भी लिए जा सकते हैं. नाउ कम टू टर्म्स ऑफ algebraic expressions. Body parts of algebraic expression that are separated with plus or minus sign are called terms. For example, 8y, this is called monomial because this has one term only. Next example, x plus 6, this has two terms, so this is called binomial. -7x square plus 5x plus 4 has three terms, so this is called trinomial. These algebraic expressions are called polynomials, but polynomial is a special type algebraic expression. समझना यहाँ पर ध्यान से, ये algebraic expression polynomial कहलाते हैं, लेकिन polynomial जो होता है वो स्पेशल टाइप का algebraic expression होता है. एक सिंपल सी स्ट्रक्चर पॉलिनोमियल की. पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स. पॉलिनोमियल, polynomial is a algebraic expression which has many terms, but this is a special type algebraic expression. Now come to the definition of polynomial. An algebraic expression which has power of variable as whole number. ऐसा algebraic expression जिसकी जो पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है वेरिएबल का,
वो वोल नंबर हो, और वोल नंबर आप जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल x रेज टू द पावर 4 -3, नेक्स्ट 1/3 y² + 4y -7, थर्ड -2/3 x³ + √3x -√2। एक बार दूसरे एग्जाम्पल को देख लेना ध्यान से। मैंने ये कहा था कि वेरिएबल के ऊपर वोल नंबर का पावर होना चाहिए, तो y के ऊपर पावर 2 है। अब बात आती है 1/3 की, तो 1/3 इज अ कोफिशिएंट ओनली। इसी प्रकार से जब थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वहाँ √3 जो इरेशनल नंबर है वो कोफिशिएंट के रूप में आया हुआ है, आ सकता है, लेकिन यहाँ वेरिएबल, इस वेरिएबल के ऊपर 1 पावर है और इस वेरिएबल के ऊपर x रेज टू द पावर 3 है, जो कि दोनों ही वोल नंबर्स हैं। These are not polynomials but algebraic expressions। ये जो अब एग्जाम्पल्स आ रहे हैं ये पॉलिनोमियल तो नहीं है लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल x + 1/x, सेकेंड एग्जाम्पल y रेज टू द पावर -2 + 2y + 1, थर्ड √x + 3x। फिर से दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो y के ऊपर -2 पावर है जो कि वोल नंबर नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो x के ऊपर हाफ पावर है, फ्रैक्शनल पावर है, तो फ्रैक्शनल नंबर भी वोल नंबर नहीं होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें 1/x आया हुआ है और 1/x को हम लिख सकते हैं x रेज टू द पावर -1 बाय द रूल ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो नेगेटिव नंबर भी वोल नंबर नहीं है। नाउ कम टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। फॉर एग्जाम्पल x रेज टू द पावर -3, डिग्री इज 4, 1/3 y² + 4y -7, highest power of y variable is 2, so degree is 2. Now come to third example, -2/3 x³ + √3x -2, highest power of variable is 3, so degree of this polynomial is 3. Now come to last example. Last example is slightly different. This is the polynomial of two variables. ये आपके कोर्स में तो नहीं है लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए ध्यान रखना। x² y³ + xy² -5। अगर इस प्रकार की पॉलिनोमियल आपके पास आ जाती है जिसमें दो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो, तो दोनों वेरिएबल्स की पावर्स का एडिशन ही उस पॉलिनोमियल का डिग्री माना जाएगा। तो यहाँ पर x² y³ हाईएस्ट पावर है और इन दोनों का जो सम है, डिग्रीज का सम, एक्सपोनेंट्स का सम, पावर्स का सम, वो 5 है। तो यहाँ पर इसकी डिग्री 5 मानी जाएगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल 3, 5, -7 आर द सम एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं क्योंकि 3 अकेले को हम लिख सकते हैं 3 × x रेज टू द पावर 0 = 3 × 1 = 3। x रेज टू द पावर 0 को एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग हम 1 लिख सकते हैं, इसको 1 लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से -7 × x रेज टू द पावर 0 = -7 × 1 = -7। सो डिग्री इज ऑलवेज 0 ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो 0 है, इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 मानी जाएगी। अब एक 0 पॉलिनोमियल जो खुद ही 0 हो, तो 0
is called zero polynomial, but degree of zero polynomial is not defined. Thank you very much. Now come to homework. First, which of the following expressions are polynomials? Say yes or no only. Yes या no ही बताना है आपको कि कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं है. राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इनमें आपको एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाइंग नंबर बताना है, मतलब कोफिशिएंट बताना है. थर्ड, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. इन सब की आपको डिग्री बतानी है. फोर्थ, write the definitions and learn them. Okay.